and Sadhguru. A very warm welcome. It is a great privilege to welcome the Honorable Prime Minister and Sadhguru today to the Save Soil event here in Delhi as part of Sadhguru's lone motorcycle journey across the world for the rallying call of Save Soil. Welcome, Honorable Prime Minister, sir, and Sadhguru. As I mentioned, it is a landmark day in Sadhguru's 100-day, 30,000-kilometer journey for the Conscious Planet Save Soil movement to accelerate citizen support and government action policy to revitalize soil. We have both Sadhguru and the Prime Minister here, and I'd like to request our soil champion, the lone motorcyclist, the one that needs no introduction, Sadhguru, to please share his pearls of wisdom with us. कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल. Namaskaram and our heartiest welcome to our beloved Prime Minister. And many other ministers, cabinet ministers and envoys and excellencies. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತ. We are here on this planet just in ಭೂಮಿಯ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿ ಅದರ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗೈಯದಿದ್ದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗೈಯದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಅಳಿವು ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದರಿಂದಲೇ. Somewhere wanting to damage this planet. It is all ಮಣ್ಣಿನ ಅಳಿವು ಉಂಟಾಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗೈತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ರೈತ ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಟಾಟೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಟಾಟೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರೈತ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು
ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತರ? And in the last 2.5 years, as I've been talking to various ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 85% ಜನರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಅಚೇತನ ವಸ್ತು ತಾಯಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದಲ್ಲ, ಅವರು ಬರೋದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗೈದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೇನು ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿಷಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಕೃಷಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ 12,000 ವರ್ಷ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಬರಗಾಲದ ಭಯದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 47ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಮಾನ 28 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬದುಕು ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು 74-75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನಿಂತು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದನ್ನು 15-20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಇರೋದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವಗಳೆಡೆಗೆ, ಜೀವರಾಶಿಯೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ 60% ಮಣ್ಣು ಅವನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿರಾಶಾವಾದದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಗೈಯುವ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಹಾರದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅರಿವಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಅರಿವಿದೆ.
ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅರಿವು ಇದೆ, ಪರಿಹಾರದ ಅರಿವು ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅರಿವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 75 ದಿನ ಇದು ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೂಡ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ. ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 74 ದಿನ 74 ದೇಶಗಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. 240 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಇದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಉದ್ಯಮ, ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧ ಮಣ್ಣಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ 45-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ 10% ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟ ಅಥವಾ ಮರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭಾರತ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಋತುವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಕಾಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ರೈತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವೇಕ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ವಿ. ಆದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋದು, ಯಾರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಕೈಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. Thank you, Sadhguru, for your enlightening words. And as mentioned by him, the Save Soil movement has already touched 2.5 billion people, and 74 countries have agreed to act. ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನವು 250 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದಂತಹ ಅಭಿಯಾನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಅಳುವು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮೀಕರಣದಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಭಾಗವಾಗುವ ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂದು ಬಂದೊದಗಿದೆ.
ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. What we are facing now is soil extinction. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone. Every responsible scientist in the world is clearly saying by 2045, we will be producing 40% less food. 300,000 farmers committed suicide. What else does it take to stir your humanity? UNFAO is saying the food that we are eating belongs to the unborn child. Eating away the food of that life is the worst possible way to live, isn't it? It is agreed by all scientific communities, minimum 3% organic content is essential to keep the organisms fed in the soil. So this is what we must aim at, an incentive-based policy where if you get the land to 3% organic content, you will get a certain amount of incentive. Ladies and gentlemen, as I mentioned earlier, several years ago, the ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ, 2015ರಲ್ಲೇ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನೀಗ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. नमस्कार। आप सभी को, पूरे विश्व को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन भी आज बधाई के पात्र हैं। मार्च में उनकी संस्था ने सेव सॉइल अभियान की शुरुआत की थी। 27 देशों से होते हुए उनकी यात्रा और 75वें दिन यहाँ पहुँची है। आज जब देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, इस अमृत काल में नए संकल्प ले रहा है, तो इस तरह के जन अभियान बहुत अहम हो जाते हैं। साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग, दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है।
विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने ये भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। और अभी सदगुरु जी कह रहे थे कि सबको पता है समस्या क्या है। हम लोग जब छोटे थे तो सिलेबस में किताब में एक पाठ्यक्रम के में एक पाठ पढ़ाया जाता था। गुजराती में मैंने पढ़ा है, बाकियों ने अपनी भाषा में पढ़ा हो शायद। कहीं रास्ते पर एक पत्थर पड़ा था, लोग जा रहे थे, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई उस पर लात मार देता था। सब कहते थे देखिए किसने पत्थर रखा, कहाँ से पत्थर आया है, दे समझते नहीं वगैरह। लेकिन कोई उसको उठा करके साइड में नहीं रखता था। एक सज्जन निकले, उनको लगा कि चलो भाई सदगुरु जैसा कोई आ गया होगा। हमारे यहाँ युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न च में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य क्या है मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से
मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें, और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। अगर हम किसी को, मनुष्य को हेल्थ कार्ड दें ना, तो भी अखबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है, लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए, और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, तो उत्पाद भी बढ़ रहा है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% नीम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। कभी कभी कुछ चीजें, अब मान लीजिए कोई 1.5-2 साल का बच्चा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आता है, और मां को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो, और उसको कहीं सुना हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए दूध वगैरह चीजें अच्छी होती हैं, और मान लो वो हर दिन 10-10 लीटर दूध में उसको स्नान करवा दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? लेकिन अगर कोई समझदार मां एक चम्मच थोड़ा सा दूध उसको पिलाती जाए, दिन में 2 बार, 5 बार, 7 बार, एक चम्मच, तो धीरे धीरे फर्क नजर आएगा। ये फसल का भी ऐसा ही है, पूरा पानी भर करके फसल को डुबो देने से फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है। बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अनपढ़ मां भी अपने बच्चे को 10 लीटर दूध से नहलाती नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हम लोग पूरा खेत पानी से भर देते हैं। खैर, इन सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करते रहना है। हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है। और अनुमान है
कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, उसमें ये और मदद करेगा। साथियों, भारत आज बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जिन नीतियों पर चल रहा है, उसने वन्य जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज चाहे टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो या फिर एलिफेंट, सभी की संख्या देश में बढ़ रही है। साथियों, देश में ये भी पहली बार हुआ है जब हमारे गांव और शहर को स्वच्छ बनाने, ईंधन में आत्मनिर्भरता, किसानों को अतिरिक्त आय और मिट्टी के स्वाद के अभियान को हमने एक साथ जोड़ा है। गोवर्धन योजना ऐसा ही एक प्रयास है। और जब मैं गोवर्धन योजना बोलता हूं तो कुछ सेक्युलर लोगों को सवाल उठेगा कि ये कौन सा गोवर्धन ले आया है। वो परेशान हो जाएंगे। इस गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट्स गोबर और खेती से निकलने वाले अन्य कचरे को ऊर्जा में बदला जा रहा है। कभी आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएं तो वहां एक गोवर्धन का भी प्लांट कुछ किलोमीटर दूरी पर लगा है, जरूर देख के आइए। इससे जो जैविक खाद बनती है वो खेतों में काम आ रही है। मिट्टी पर अतिरिक्त दबाव बनाए बिना हम पर्याप्त उत्पादन कर सके, इसके लिए बीते 7-8 सालों में 1600 से ज्यादा नई वैरायटी के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। साथियों, नेचुरल फार्मिंग में भी हमारी आज की चुनौतियों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है, डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है। हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का, नेचुरल फार्मिंग का। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को रिस्टोर करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस, प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। हमने जो देश भर में LED बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई, उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में अगर सब लोग जुड़ जाएं, सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है। भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो, इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40%
नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं। वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा। हाँ, कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। साथियों, देश आज जिस पीएम नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान पर काम कर रहा है, वो भी पर्यावरण रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। गति शक्ति की वजह से देश में लॉजिस्टिक सिस्टम्स आधुनिक होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा। इससे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिलेगी। देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, 100 से ज्यादा नए वाटर वे के लिए काम हो, ये सभी
पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में भारत की मदद करेंगे। साथियों, भारत के इन प्रयासों, इन अभियानों का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। ये पक्ष है ग्रीन जॉब्स। भारत जिस प्रकार पर्यावरण हित में फैसले ले रहा है, उन्हें तेजी से लागू कर रहा है, वो बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स के अवसर भी बना रहे हैं। ये भी एक अध्ययन का विषय है कि जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, मिट्टी की रक्षा के लिए जन चेतना जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। मेरा देश और देश की सभी सरकारों से, सभी स्थानीय निकायों से, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह है कि अपने प्रयासों में स्कूल कॉलेजेस को जोड़िए, एनएसएस एनसीसी को जोड़िए। आजादी के अमृत महोत्सव में जल संरक्षण से जुड़ा एक आग्रह और भी करना चाहता हूं। अगले साल 15 अगस्त तक देश के हर जिले में कम से कम एक जिले में, हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण का काम आज देश में चल रहा है। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। ये अमृत सरोवर अपने आसपास मिट्टी में नमी को बढ़ाएंगे, वाटर टेबल को नीचे जाने से रोकेंगे और इनसे बायोडायवर्सिटी भी इंप्रूव होगी। इस विराट संकल्प में आप सभी की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, इस पर जरूर विचार हम सब एक नागरिक के नाते करें। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा और तेज विकास सभी के प्रयासों से संपूर्णता की अप्रोच से ही संभव है। इसमें हमारी लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है, हमें कैसे उसे बदलना है, इसे लेकर मैं आज शाम को एक कार्यक्रम में बात करने वाला हूं, विस्तार से कहने वाला हूं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेरा कार्यक्रम है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, मिशन लाइफ। इस शताब्दी की तस्वीर, इस शताब्दी में धरती का भाग्य बदलने वाला एक मिशन का आरंभ। ये P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट होगा। आज शाम को लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन का लॉन्च हो रहा है। मेरा आग्रह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत हर व्यक्ति को इससे जरूर जुड़ना चाहिए, वरना हम एसी भी चलाएंगे और रजाई भी उड़ेंगे और फिर पर्यावरण के सेमिनार में बढ़िया भाषण भी देंगे। साथियों, आप सभी मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपको सिद्धि मिले। सद्गुरु जी ने जो लंबी ये यानी मेहनत वाली यात्रा है, बाइक पे, वैसे उनका बचपन से शौक रहा है ये, लेकिन फिर भी काम बड़ा कठिन होता है। क्योंकि मैं कभी यात्राओं को ऑर्गेनाइज करता रहता था और मैं कहता था मेरी पार्टी में कि एक यात्रा को चलाना मतलब 5-10 साल उम्र कम कर देना, इतनी मेहनत पड़ती है। सद्गुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को
मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Prime Minister, sir. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದರು. ನಮಗೆ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Please remain in your places, ladies and gentlemen, as the Prime Minister and Sadhguru leave the hall. Please be seated. Thank you, Sadhguru, and we wish you a safe journey. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸದ್ಗುರು. ನಿಮ್ಮ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಈ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ತಲುಪಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಈ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ 27 ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಸದ್ಗುರು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ. It's a great pleasure for me. These beautiful Caribbean nations are going for this fast. This memorandum of understanding that we signed, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region.